हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है रचना मुंदरा मैम। सो शी इज अ टीचर. She has done teacher's certification in phonics and handwriting. Her education qualification is Masters in Labor Law and Welfare, PGDM in field of Personnel Management and Human Resources. मैम ने जब अपने बच्चों को हैंडराइटिंग, फोनिक्स इन सब चीज़ों से जूझते देखा तो उन्होंने खुद ही सोचा कि अपने आप को ट्रेन करते हैं ताकि बच्चों की और दूसरों बच्चों की भी हेल्प कर सके। हेलो मैम। हेलो मैम। सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है जब कोई बच्चा आपके पास आता है और उससे आपको हैंडराइटिंग इम्प्रूव कराना होता है? व्हाट इज योर बेसिक एंड फर्स्ट स्टेप? सबसे फर्स्ट थिंग होती है वी वांट टू अंडरस्टैंड द एज ऑफ द चाइल्ड. व्हाट एज इज द चाइल्ड. एट टाइम्स पेरेंट्स मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आए हैं जो 2-2.5 साल का ही बच्चा है. अच्छा। एंड वो प्ले ग्रुप में जा रहे हैं बट पेरेंट्स आर गेटिंग मैरिड कि दूसरा बच्चा तो ABC या कुछ लिख पा रहा है बट मेरा बच्चा नहीं लिख पा रहा है. So that time I have to really pacify and make the parent understand that your child is at a very young age. Just give him or her some time, and then you can start. By the time they're 3.5 is a very, very good time to start. Why I say this is, handwriting is directly related to a brain activity. So at different ages, it works differently. Like say for example, if the child is around 3 to 4 years, so उस समय बच्चे का स्पेशल रिकॉग्निशन हम एक चीज बोलते हैं जो कॉग्निटिव आपकी एबिलिटीज है तो वो सब कुछ जुड़ा होता है ब्रेन से. तो हाउ इट इज रिलेटेड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई गिव अ चाइल्ड व्हेन ही इज 2.5 आई विल आस्क हिम टू कलर समथिंग. यस. व्हाट उसके लिए कलर कैसा होगा. दिस इज अ राउंड, वो ऐसे कलर कर देगा, बोलेगा कलर हो गया. सो उसका स्पेशल रिकॉग्निशन अभी ये नहीं है. उसको ये पता है अच्छा अब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सर्कल में ही कलर करेगा. मे बी वो बाहर भी कर सकता है, बोलेगा कलर हो गया. बट नाउ व्हेन यू सी विद द एज व्हेन द चाइल्ड ग्रोज बाय द टाइम 3.5 दे गेट अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अच्छा ये सर्कल है. सो द कलरिंग मीन्स कलरिंग द एंटायर सर्कल. So when the child is at this tender age of 2.5, we suggest to work on their hand motor skills. Yes. So how do we develop it? बहुत ही easy है घर पे. Any parent can do it. अब बड़े दाल के दाने, छोटे दाल के दाने, they can separate it. Okay. क्ले के काफी चीजें देना खेलने की. क्ले मोल्डिंग से क्ले से लेटर्स बनवाना. या फिर सिंपल पॉम्पम्स हैं, पॉम्पम स्टिक करवाना है. एक क्रिएटिविटी को भी ऐड करना with some circular motions or with the motions like slangs, sleeping. जैसे at times we do it like for a little funny for our kids की slant है ना, देखो वो टेढ़ा हो गया. sleeping है ना, वो सो गया. so ये खड़ा है तो this is a standing line. So this is how you can engage them initially to increase their interest, क्योंकि उनका wrist movement, hand movement उसके लायक होना चाहिए कि वो कर सके. So this is the very first thing, asking the age, because at different age the requirements of the child may differ. Like we spoke about ages around 4 to 6. So now they are actually understanding the instructions. So they are in the phase they'll see something and they'll copy something. They may not understand everything, but they'll see and they'll copy and they would like to make it same. Yes. So this is the second stage. And then like say if you have kids of 6 to 8 years, now the requirements totally change. You also want some kind of comprehension to happen here, कि वो जो लिख रहे हैं वो थोड़ा तो समझ के और अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखे. Though we are not doing a creative writing class, but yes, we want the child at least to understand the gist of it and write it. And now when you go to the later ages like 13 plus or even for us, so our requirements are totally different. It's an expression of our creativity. Maybe writing essays, so beautiful writing is required. Maybe quoting some you can say some scientist or maybe some management guru, you're quoting them. So you have to have a beautiful handwriting where you're presentable enough, where your work is presentable enough to convey your thoughts to the faculties. क्योंकि अभी तक तो बच्चा याद करके लर्न करके लिख रहा है, जो उसको कराया गया लिख दिया. बट एट दिस एज हैंड राइटिंग अगेन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप नोट्स भी लिख रहे हो. ना आप कॉलेज में हो, टीचर अब आपको पके पकाए नोट्स नहीं देंगे. नाउ यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स.
तो अगर वो legible ही नहीं है to you, so how is that useful? Yes. Let alone the doctors, the fraternity is like, trolled a lot, but I'm saying कि उनको क्योंकि the legibility always has to be there. Yes. So this is what I believe. So this was the first requisite, like we asked the parents that what's the age. And is it possible, जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं like 14, 16, 18, they can also improve their handwriting? 100% they can, even we can. Yeah. Only thing is if they have that will to. Yeah. Because at 14 and 16, asking a child to sit accordingly and do something is really difficult because Yes. I've had those age of kids. But yeah, few of them are really good, like very cooperative, and few of them won't change. So Depends on the child. it depends on the child, and yes, of course, the teaching methods are we have to be more friend-like, have a friend-like approach to them, please, and all those stuffs. But it works. Yeah, And can handwriting help to boost the confidence in child? 100%. Why not? Like you would have seen teachers in class giving examples. Yes. देखो इसकी handwriting कितनी अच्छी है, इसको उनको एक good मिल जाता है, एक star मिल जाता है. So they're definitely so happy about it. And सबसे पहला जो हम बच्चों को convince करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं कि देखो आपके ना notes आप खुद पढ़ पाओगे, आप खुद याद कर पाओगे, और फिर आपके friends भी मांगेंगे आपसे आपकी notes. तो वो उनको बहुत बड़ा sense of achievement लगता है कि अरे वाह, मतलब my notes will be sought for in the entire class. So this is one of the biggest motivations. And there are some schools, there are some communities, even they hold handwriting competitions also for the kids. So which is a very, very good way. Motivating. How like initially letter writing, emails have come now. It has been replaced. So at times, like even we would write Diwali cards. Writing is not restricted to one form. No? There's so many kind of writing. Print writing, जो हम books में देखते हैं, cursive handwriting, then there is brush pen, then there is calligraphy. So it's endless. So handwriting is just not restricted to one form of writing as such. So there are many forms of it. So you can express yourself however you want, like in any of the forms. And अभी तो सब कुछ digital होते जा रही है, like पहले जो हम cards बनाते थे, now you can make it through Canva and all. So बच्चों का interest कम होते जा रहा है या No. There are schools who have not actually given up on writing at all. They wanted cursive, which is very good. They want it in a very legible manner, and they want the kids' work to be completed? Yes. And these things, like I think schools in Raipur, and even I have trained kids from UK, US. So what I saw, parents really want their kids to write in cursive writing, because वहाँ पे वो print writing में लिखते हैं and every letter gets mixed. तो वो समझ नहीं आता कि where the word is starting and where it is finishing. So they want that kind of clarity from the child. So even they stress on handwriting because वहाँ पे learning के ऊपर observation के ऊपर ज़्यादा focus है. India में we have focus on everything. So handwriting is a very, very good medium to train the brain basically to focus and to have your concentration. Like आपका जो पूरा आप बोलोगे fine motor skills, right from concentration, everything is in place because वो time आप कुछ भी नहीं सोच रहे. Yes. You are only focusing in your writing on your work. So it also develops your concentration. And patience, yes. Brain is connected with our handwriting. Handwriting, yes. And अभी आजकल क्या होता है, कई जो teenagers especially, they put their headphones on and then they write. So I don't think it's a good practice for them. No, depends on what they're writing. So immediately shunning it, and calling it like it's not a good practice. They don't know actually, what they're writing. The content has to be clear. Yes. If the content is expressive and they're able to communicate, why not? Yeah. So if it suits them. Yeah. Okay. So if it's their way of study, and if they are gaining something from it, so it's okay. Why not? Because end of the day, what we want is learning. So might be a child feels calmer, or maybe at peace when he's listening to music, and maybe he feels disconnected from other things and concentrate only on his or her work. Like what maybe
थॉट आता है आपके दिमाग में कभी कि ये 15-20 मिनट, एंड देन यू डोंट वांट टू लूज ऑन इट एंड यू जस्ट वांट टू होल्ड इट एंड राइट इट. सो मे बी दैट्स देयर वे ऑफ डूइंग इट. सो यस, व्हाई नॉट. एंड जैसे स्कूल में हम किसी बच्चे को डाल रहे हैं, उसके पहले से ही पेरेंट्स कंसर्न होना शुरू हो जाते हैं कि अब बच्चा स्कूल में जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा. सो वो टाइम पे कुछ ऐसे टिप्स हैं जो यस, पेरेंट्स कर सकते हैं ताकि बच्चा लिखने में जल्दी 100% वी कैन डू इट. स्पेशली जो आपके पास समर्स का टाइम होता है, you can really utilize it. 1.5 months में a child, you know, will start giving amazing results, but you have to consistent with them. जैसे for example, letters का जो formation होता है, जैसे हमने पहले उनको सिखाया slant, हाँ like how I go about is make a slant, make a curve, come back, make a curve again. So we are constantly talking to them, उनकी memory में भी feed हो रहा है. Then we also do a air brushing, कि okay, make a slant, make a curve, come back, make a curve. तो ये उनका मसल मेमोरी बिल्ड होते जा रहे हैं. सो व्हाट वी डू, एक छोटा सा प्रोसेस है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं. इफ दे वांट दे कैन सेंड टू एनी टीचर अराउंड देयर प्लेस इफ दे फाइंड देम. वो एनीथिंग इज गुड, लाइक इफ इट वर्क फॉर द चाइल्ड एनीथिंग इज गुड. सो जैसे लेटर्स आप कैसे सिखाइए सीक्वेंस में. तो अगर बच्चे थोड़े से छोटे हैं 3 to 4 years, सो वी कैन स्टार्ट विथ इजी लेटर्स लाइक आई. फिर आपने गैप कर दिया तो क्या बन गया यू. फिर आपने ऐसे करके नीचे ले आए तो क्या बन गया जे. फिर वही यू से आप ले आए तो वाई. सब लेटर्स जो कनेक्टेड है एबीसी के सीक्वेंस में मत चाहिए. लेटर्स जो कनेक्टेड है उससे चाहिए. यू स्टार्ट विथ स्मॉल केस लेटर्स फर्स्ट, स्मॉल केस कर्सिव फॉर यंगर किड्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू एल्डर किड्स, हम सी पहले ले लेंगे. हम ये बच्चों के लिए सी में लास्ट में आते हैं. तो नाउ अभी आप सी से क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो. जस्ट इमेजिन हाउ मेनी लेटर्स आर वी डूइंग. स्लैंटिंग यू हैव डन सी, देन यू हैव डन ए, then you have done D, then you have done O, then you go slanting, then you have done E, and then you have done also Q, G. So we tell them like small funny terms like tail, ascender, descender, loop बनाओ, ये base line है, top line है. तो we give them some you know cues to help them to train their brain to understand, okay, मेरा लेटर ये 2 लाइन के साथ साथ ही चलना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए. So when they come to single line, they know, उनको तब तक इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, they know the proportions. क्योंकि हमने 4 लाइन से उनको ट्रांजिशन किया 2 लाइन से, 2 लाइन से हमने उनको ट्रांजिशन किया 1 लाइन. So now they know कि अगर मेरा B बनेगा तो वो A का जस्ट डबल होएगा. वो एज मतलब ऐसे we give them examples also कि से अगर मैंने A ऐसे बनाया और मैं भी इतना बड़ा बना दूँ तो कैसे लगेगा. भाई इमीडिएटली किसी नहीं अच्छा नहीं लगेगा. सो वी से कि हाँ आपको यही करना है, जस्ट आपको प्रपोर्शंस का ध्यान रखना है. सो द रिजल्ट्स डू कम. सो इसमें व्हाट वी डू कंसिस्टेंसी के लिए जो आपने बोला और कम समय के लिए, सो वी हैव टू डू रिविजन्स डेली. जैसे अगर मैंने आज 4 लेटर्स कराए, सो फर्स्ट आई विल रिवाइज दोस 4 लेटर्स टुडे एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस द न्यू 2 one, and then when I am going to the another 9th one or say 7th one, so I do the revision of all 6 and then I come to the 7th one. So we go like initial हम पूरे जाते हैं letter formations, then we go to the word formations, then we go to the sentence formation and then comes the paragraph. And then you can also kids जो होते हैं छोटे, especially they want to look here and there. उनको सब बातें याद आती है उसी समय. तो what we do is when they're writing paragraphs especially to give them some sense of achievement, we give them timers. Okay, कि अभी ये क्लॉक है, आपका ये टाइम में आप इतना कंप्लीट करोगे. वो टाइमर के लिए they want to sit. और कंसिस्टेंसी के लिए फिर हम उनको, अगर आज हमने 4 लाइन्स करवाए तो कल भी हम 4 लाइन्स करवाएंगे, परसों भी हम 4 लाइन करवाएंगे. उससे क्या होगा, हम ट्रैक करेंगे कि मान लीजिए आज आपने 4 लाइन 5 मिनट में, कल मान लीजिए आपको फिर से 5 ही मिनट लगे, but maybe on the 3rd day you're doing 4 minutes 50 seconds. Even that is achievable. So that gives the child a lot of sense of achievement, a lot of sense of achievement. So these are few things, but parents have to be consistent. आपको daily लेके बैठना है, given what में, like half an hour तो आपको daily इसमें contribute आप कीजिए. And if we are starting from a very early age, then definitely they'll 100% results show. And पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, बहुत इम्पॉर्टेंट है.
एंड जो कुछ बच्चे लेफ्ट हैंडर होते हैं, हाँ, सो इज इट द सेम वे ऑफ टीचिंग देम? हाँ, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे अगर राइट हैंडर है तो उनकी जो बुक होती है ना, हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट करने, लाइक जैसे पोजीशन होती है कि आप स्ट्रेट बैठो, अगर एक कोई फुट रेस्ट है तो आप उसका हेल्प लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा हाथ आपका टेबल पे होना चाहिए। व्हाट हैपेंस इफ आप ऐसे करते हो फिर ऐसे लिखते हो, आपका प्रेशर क्या हुआ, ये हाथ पे ज्यादा, आपका ये हाथ भी दुख रहा है, ये हाथ भी दुख रहा है, तो प्रेशर आपका बैलेंस करने के लिए, और आप थोड़ा ही टिल्ट हो। बहुत से बच्चे थे टेंड टू स्लीप, सो नाउ व्हाट हैपेंस, अभी तो राइटिंग सीधी लिख रहे थे, अभी टेढ़ी हो गई, सारी राइटिंग्स हो गई। एक ही कॉपी में आपको सीधी भी राइटिंग मिलेगी, टेढ़ी भी राइटिंग, बिकॉज वो अटेंशन। तो वो बार बार जब हम क्लास में होते हैं ना, वही जो मैंने बोला ट्रेन द ब्रेन, तो आप उनको बार बार बोल रहे हो नहीं स्ट्रेट बैठो, कैसे बैठते हैं, वो खुद ही अपना हाथ टू राइट, हाँ देन डू इट। तो वो क्योंकि उनको पता है कि ये गड़बड़ हो रही है मुझसे, और वो तुरंत बैठेंगे। हाँ, नाउ कमिंग टू द लेफ्ट हैंडर्स, सो लेफ्ट हैंडर्स का ना हाथ बहुत पेन होता है, राइट हैंडर्स का भी होता है, दोनों का होता है। लेफ्ट हैंडर्स का आप देखोगे ना, वो ऐसे एक हुक बनाने का ट्राई करते हैं, दे मेक अ हुक, तो उनका ग्रिप पे वर्क कर सकते हो, बट वो लेफ्ट से ही लिखेंगे, तो उनकी बुक थोड़ी सी राइट पे टिल्टेड होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे तो उनका हाथ तो स्मजिंग नहीं होगी, क्योंकि उनकी बुक इधर हट गई है, तो वो लेटर्स उनके स्मज नहीं होंगे। सो लेटर्स स्मज नहीं होंगे और हुक तो उनका थोड़ा बनेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा उनके लिए होता है, उनके लेटर्स आप देखने ऐसे आपको फील होंगे, तो उनको जो आपका रिजल्ट रहता है ना कि ऐसे स्लैंट्स में जा रहा है, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है वो अचीव करने में, बट दे डू इट। हाँ, इनिशियली थोड़ा सा वो एक्सरसाइजेस भी हम लोग कंटिन्यूस बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि व्हेन दे से ना कि हाथ पेन हो रहे हैं, मतलब एक्चुअली पेन हो रहा है, तो आई डू दिस, ये वाला, तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ मैम 5 मिनट ये करवा दो, तो क्योंकि वो एक्चुअली उनका हाथ दुखता है। देयर आर मेनी एक्सरसाइजेज आप इसके अंदर करवा सकते हो, कि जैसे उनका यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो थोड़ा रिलीज होए। सो थोड़ा थोड़ा बीच में, लाइक इन 1 hour ऑफ क्लास वी जनरली गिव देम 2-3 मिनट्स, जो ब्रेक होता है उसमें एक्सरसाइज ही होता है, तो ये वाला होता है, ये वाला होता है, सो दे आर वेरी हैप्पी डूइंग इट, ऐसे वाला होता है। Yes, they do. आप ऐसे रेकमेंड नहीं करते हो ना कि लेफ्ट हैंडर है तो उसको फोर्सफुली राइट हैंड से नहीं लिखाना चाहिए? नो 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 नो, लेफ्ट हैंडर है वो बिकॉज वो उनका द ब्रेन इज ट्यून लाइक दैट। हाँ, देर आर किड्स हु आर एम्बिडेक्स्ट्रस, और वो उसके लिए राइट ब्रेन, मिड ब्रेन, जो ये सारे काफ़ी एक्टिव, ये एक पूरा डिफरेंट फील्ड हो जाता है, एंड हाउ द पेरेंट्स वांट इट। जैसे इंडियन पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है कि लेफ्ट से मत लिखो, क्योंकि वो लेफ्ट से बहुत सारा, लाइक माई डॉटर इज अ लेफ्ट हैंडर, बट वी नेवर फोर्स्ड हर, एंड उसको भी दिक्कत हुई थी। शी वुड इवन मेक मिरर इमेजेस, ओके एंड इवन शी वुड राइट, जैसे उर्दू लिखते हैं ना, तो वो उल्टा ऐसे लिखना चालू करती है। बट विथ कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस इन 3 to 4 months we can see that she's entirely changed. Though she still writes few, mirror images for few of the letters, she still does it. But that is okay. I think B अभी सारे बच्चे करते हैं। She's of how much? She's 6 years. अच्छा, मतलब she is in improving state. हाँ, she left me. हाँ. So that's how it works. Like yeah. एंड सही बच्चे होते हैं जो थोड़े स्लो हो जाते हैं, दे आर ऑफ स्पीच डिले और एनी मोटर स्किल डिलेज, सो उनको सिखाने में कुछ आपको चैलेंजेस आते हैं? बहुत स्लाइट बिट ऑफ चैलेंज, दे मे टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम, विच इज़ ऑल्सो ओके। और उसके बाद सेम चीज़ होती है जो हम पेरेंट्स को फिर साइमल्टेनियसली घर पे करने बोलते हैं, बिकॉज हमारे सेंटर पे बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, हैंड मोटर डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटीज़ है वो सारी आप टॉयज, ब्लॉक्स, क्लेज, घर का अनाज, रंगोली, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आप करवाइए, सो इट वर्क्स। ओके, ग्रिप, जैसे ट्राइपॉड ग्रिप है, तो वी जनरली एक्सप्लेन देम कि जैसे आपका फ्रॉक कैसे चलता है, ऐसे, तो यू डोंट हैव टू स्टॉप जब ये आप लिख रहे हो, सो यू डोंट हैव टू डू दिस। जैसे आई और टी के लिए आपने उठा लिया ना, आप मान लीजिए 8 लिख रहे हो, आपका फ्लो रुक जाएगा, सो वी से कि आप फिनिश करिए एक वर्ड, then you put the dot of I and then you put the crossbar of T, then you finish it. yes, So with a little bit of tips and tricks do help them
Yeah. Because when we are writing in cursive, हम continuation में पहले लिख लेते हैं, then we Then we put the हाँ, जो हम पूरा एक लिखते थे ना, A से लेके Z तक एक साथ, तो वो डेली when the child is that stage पहले वो वही लिखता है. Then we start the sentence या कुछ भी, अगर वो ठीक नहीं होता है then तो वो हाँ has to continue again. हाँ, उसके बाद ही फिर आते हैं next stage पे. And अगर handwriting अच्छी है, if you are writing in a very good way, so आपका reading पे भी effect पड़ता है. Like, are they both connected? See, science do says yes, but I think कि वो actually it's totally your brain activity. जैसे कुछ बच्चों के आप देखोगे writing बहुत सुंदर है, legible है, तो active हो सकते हैं. But I mean also the most brilliant kids ऐसा मैं नहीं, you know, it's a very generalistic comment to make. So reading and your mind could be two different entities. This is what I believe. यानी हाँ, रीडिंग आपका ये हो सकता है कि आपकी राइटिंग की क्वालिटी क्या है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हैंड राइटिंग पर से. सो व्हाट इज योर राइटिंग यू नो क्वालिटी. तो अगर आप लेजिबल हो नहीं हो तो फिर राइटिंग क्वालिटी वोंट चेंज. आप उसको कंप्यूटर पे भी डिजिटल करके यू कैन प्रिंट इट. सो I generally don't think that, you know, it is all related. It is my opinion. So एक चीज और भी है कि बच्चों की handwriting से क्या उनकी personality define होती है. हाँ, there is a field called graphology. तो वो बहुत vast field है. So they even analyze your signature, handwriting to know better, you know, आप कैसे person हो. But given that same thing, that given today's age and relevance, अभी आपकी राइटिंग नहीं भी ठीक है, यू कन्वर्ट इट. मे बी देयर कुड बी फील्ड्स हु एक्चुअली रिक्वायर हैंड राइटिंग एंड दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी फॉर देयर जॉब. सो ग्राफोलॉजी किसी फॉर्म्स के, काफ़ी सारे फॉर्म्स का एक इंटेग्रल पार्ट भी है, वेयर दे एक्चुअली यू नो एनालाइज देयर एम्प्लॉयज़ फॉर द सेम, बट नॉट एवरीवेयर. सो येस, दे जैसे अभी मेरे पास बच्चे आते हैं, जैसे अभी वो अच्छा लिख रहे हैं, अचानक से मैम ये लो वर्क हो गया. अभी तक वो उसी बच्चे ने सुंदर लिखा है, यानी कि उसको वो डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है, अरे अब हो गया, बोर हो गया वो. सो मेरे लिए छोटे छोटे मार्कर्स है ना. अभी फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेट लिखते लिखते अचानक से बेंड करने लग रहा है, यानी लिख तो अच्छा रहा है बट उसको अब आलस आ रहा है, या अब नींद आ रही है, या अब उसको करना नहीं है, या अब वो यू नो फीलिंग अ लिटिल टायर्ड. सो मेरे लिए ये मार्कर्स होते हैं. But if you talk about graphologists, you know, it's a whole set of deep knowledge you study, and even they give you analysis on your signature, that how is it, you know, going to treat you in future. आपको dots नहीं लगाना चाहिए या लगाना चाहिए, आपको parent का एक initial include करना. So it's a vast science. तो काफ़ी लोग graphology भी out of interest read करते हैं. They are called graphologists basically. Yeah, so this is a very big field in itself. हाँ. But जैसे कि you are an experience in this बच्चों के handwriting, तो आप समझ सकते हो कि अभी इसे आलस आ रहा है या disinterest है. हाँ. वो आप हाँ, वो ही हमारा काम है basically. My work is that if the parent is sending a child to me, my work is that only. So पहला ही हम जो करते हैं, first step when the child is onboarded or with me, so the first thing we do is हम एक सैम्पल लेते हैं. हमारे पास एक सेट कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो हम उसका सैम्पल लेते हैं, और मैं उसको वो टाइम ऑब्जर्व करती हूँ बच्चे को कि, तो जनरली इसलिए बैच साइज हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बिकॉज आई वांट टू सी दैट चाइल्ड कि वो कैसा लिख रहा है, उसका लिखने के टाइम ग्रिप कैसा है, बैठा कैसा है. तो वो फर्स्ट डे तो बिल्कुल ही इट इज़ टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हिज पैटर्न ऑफ राइटिंग. एंड देन नेक्स्ट डे वी आर ऑन आवर पैटर्न, and then we analyze it, like after 20-25 days or maybe 1.5 months given the child speed. तो वो हमको फिर clarity आती है कि अच्छा, we have reached, you know, somewhere and the improvements are showing. So that's how we, you know, track the gap or the difference or the betterment of the writing. So this is how we do it. And जैसे आप कुछ exercise बता रहे थे अभी hand की wrist. So there are many exercises like this जो बच्चों को. हाँ, there are lot of exercises. अभी यही है, आप इसी में यहाँ पे लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो, इसी में आपका नेक मूव करो, ये, और मतलब
ताकि आपका शोल्डर और नेक पे जो थोड़ा प्रेशर आ रहा है लिखते लिखते थोड़ा रिलीज हो, एंड इट वुड हार्डली टेक 1 to 2 minutes। एंड ये बीच बीच में गैप में करना चाहिए हाँ इफ दे आर कंटिन्यूअस राइटिंग। यस यस 100%। ये करना हाँ चाहिए। हाँ एंड एक चीज आपने बताई थी एयर ब्रश हेयर ब्रश। करते हो, सो इट इज यूजफुल फॉर द टॉडलर्स। No, for I do it mostly till ages 11, 12 at times also। 12 के बच्चे थोड़ा सा मतलब 12 years के बच्चे थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, बट वाई जब भी स्पीड राइटिंग होती है, मसल मेमोरी जो मैंने बोला, ब्रेन मेमोरी, ये सब बिल्ड हो रहा है, तो वो फॉर्मेशन उनको बिल्कुल वो जो बोलते हैं आप एक ब्लॉक हो गया, हाँ, वो उसका काम करते हैं। दिस ऑल रिलेटेड। so what is exactly airbrush, मतलब कैसे बच्चे करते हैं? जैसे हमने एक ए करवा लिया उनको, अब हम उसको एयर ब्रश करेंगे हवा में, और वी लाज अभी बच्चा अगर छोटा, फॉर एजेस इट विल चेंज, छोटा है तो वो इतना बड़ा ए गुड, बट नाउ व्हेन द चाइल्ड इज इन अंडरस्टैंडेबल एज, हम बोलते हैं आई पे फोकस करो, ये लाइन है, अब इसके अंदर वो बच्चे का ये सब मूव करेगा, ये हैंड भी मूव करेगा। बट नाउ व्हेन द अ लिटिल एल्डर चाइल्ड और अंडरस्टैंड, हाँ, अब वो ऐसे करेगा, उसका आई, उसका हैंड सब मूव हो रहा है इसी लाइन। तो दिस इज एयर ब्रशिंग। एंड हम लोग ये सरफेस पे भी, आप ये टिप से भी आप ये ऐसे कर सकते हो, हाँ उस पे भी आप करवा सकते हो। तो ये सब स्पीड राइटिंग में ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। और अभी मेनी स्कूल्स आप इंट्रोड्यूस सैंड पे वो राइटिंग करवाते हैं। हाँ हाँ, ये मॉन्टेसरी का एक बहुत अच्छा पैटर्न है। हाँ, वही सेंसरी भी हो गया, मोटर बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का भी हो गया, फन एक्टिविटी भी हो गई, एंड रिलेटिंग द मोमेंट्स। अच्छा ऐसे घुमाए हैं तो एस बना है, और वो उसमें वो डायरेक्शन भी बोलते हैं, ट्राई करते हैं कि आप ये डायरेक्शन से करो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड, ये मॉन्टेसरी की जो मॉन्टेसरी टीचिंग जो बोलते हैं मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड, तो ये उनका बहुत ही पुराना और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। तो whenever हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, so when he or she is writing, so we should speak to them, तो हमने उन्हें instructions देते रहना चाहिए। हाँ, लिटिल बिट ऑफ इनपुट इज गुड, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने उसको एक ए दिया एक बच्चे को लिखने के लिए, मैंने उसको बताया ये करेक्ट तरीका है, बट अभी वो 10 से 15 ए लेके आता है विच आर ऑल डिस्टॉर्टेड, विच आर ऑल नॉट गुड। सो वेयर इज द पर्पस? हिज टाइम एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो लॉस्ट, एंड माई टाइम एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो लॉस्ट। सो a little bit of intervention and input in between for a certain period of time is good. After that they're on their own. Like कई बार ऐसे होता है ना कि लिख देते हैं ए लिखना है, अब बच्चे को दे दिया जाता है कि you do it in your own. So instead of that बीच बीच थोड़ा सा इंटरवेंशन, आप थोड़ा सा इनपुट दे सकते हैं। स्कूल्स में तो उनके पास टाइम नहीं होता है, और घर पे अगर आप करवा रहे हो, अगर वो स्कूल का वर्क है तो वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, आपको पूरा कराना पड़ेगा। बट आप घर पे अगर करा रहे हो तो टेक इट इजी, लाइक टू जस्ट गिव इट वन टाइम, एक ये बना के लाना, पर बहुत सुंदर बना के लाना, तो उनके दिमाग में फिट होगा कि मेरे को ऐसा ही कराना है, तो वही करेक्ट। सो डोंट गिव देम कि जाओ 10 ये लिख के ले, हाँ वैसे जाओ 5 लिख के ले आओ। हाँ, नहीं ये नहीं, अपन को काम नहीं। तो एक ही बनाओ बट परफेक्टली। हाँ, अगर आप स्पेशली घर पे करा रहे हो, स्कूल्स के में तो आप नहीं कर सकते, वो जो बोलेंगे आप। सो कैलीग्राफी भी आप सिखाते हो? हाँ, ब्रश पेन, आउट ऑफ माय इंटरेस्ट है, या एंड नॉर्मल एयरलाइन पेन से कैलीग्राफी। सो किड्स आर इंटरेस्टेड इन दैट? हाँ, व्हाट हैपन, जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं ना, 4th 5th के, so they have now school projects to make, so they get really excited कि मुझे अच्छा कुछ अगर प्रोजेक्ट बनाया, हाँ, तो और टीचर वुड भी लाइक, अरे आपने हाथ से बनाया है। स्कूल में कोई ना कोई एक्टिविटीज होती है, तो वहाँ पे कुछ स्लोगन राइटिंग है, कुछ क्रिएटिव, उनको कुछ अपना कॉर्नर या कुछ सेल का कुछ डेकोरेट करना है, so they can use it. एंड जैसे आप जो फोनिक्स सिखाते हो वर्ड्स बोलना, सो व्हेन यू राइट तो वो भी वर्ड्स रिफ्लेक्ट होते? नहीं, when you read actually, ओके, when you read, reading phonics helps you a lot,
एंड देन राइटिंग में वो कब हेल्प करती है, व्हेन यू राइटिंग इट करेक्टली. जैसे अभी से फॉर एग्जांपल आई सेड रीड, तो ई ए का साउंड है, तो ई ए इज अ लॉन्ग साउंड बेसिकली. ये लॉन्ग साउंड कभी भी दो वॉवल्स एक साथ जा रहे हैं तो एक चुप रहेगा एक बोलेगा, तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है. और ये लॉन्ग ई का साउंड है, तो वो साउंड्स बच्चों ने पता होना. सो इट एडुकेट्स देम अबाउट कि ई ए का रिलेशन साउंड से क्या है. ई ए का रिलेशन है, मतलब ई ए बोलता है ई. तो ऐसे फोनिक्स के अंदर 44 फोनीम्स है, यानी 44 साउंड्स हैं जो अलग अलग ग्राफ यानी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं. तो काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, पर फोनीम्स जनरली एक जनरलिस्टिक अप्रोच है कि 44 ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग गिवन टू अलग कंट्री, अलग कल्चर के हिसाब से थोड़े बहुत फोनीम्स चेंज. हाँ, बट मोस्टली 44 के अंदर सब आ जाता है. जैसे कि अगर ई ए है तो ई बोलता है, तो ई भी ई ए बोलता है, डबल ई भी ई बोलता है, आई ई भी समटाइम्स में ई साउंड. तो ऐसे करके आप सोचो कि एक ई के लिए कितने ग्राफ्स हो गए. तो इसी तरीके से 44 फोनीम्स हैं हमारे पास, और ग्राफ्स तो सबके बहुत सारे. So you train kids and also the teachers if they No, currently, yes. Currently, I've started with teachers training for schools. So I've done 2 schools so far, so which have been a very good experience. Like I did level 1 with them, and I do it for teachers and I do it for teachers and also for students. And we are also planning in near future to take a small parents workshop, because parents ही generally परेशान होते हैं. हाँ. तो जैसे वी आर प्लानिंग कि कुछ हम अच्छे से सिलेबस को कैसे ब्रेक करके स्पेलिंग बनाना है, तो कुछ ऐसा एज ग्रुप वी आर प्लानिंग कि एक छोटा सा पेरेंट्स वर्कशॉप भी रखें, वेयर दे कैन आस्क द डाउट्स ओपनली. एंड अगर वो घर पे भी कुछ करवाना चाहते हैं सर ऋषभ, दे कैन इजीली डू इट, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पेरेंट टू ट्रैवल, टू मेक द चाइल्ड ट्रैवल, या फिर डू ऑनलाइन एडिशनल ऑनलाइन क्लास. It is not everyone's cup of tea, or maybe they want to concentrate on some other development of the child. So, but initial years mein, I think by the time the child is in class 1 and moving to class 2, उनका reading काफ़ी strong हो जाना चाहिए. Because the reports shows कि जो class 3, 4 के बाद नहीं पढ़ पाते हैं बहुत अच्छे से, उनको reading में life long issue होता है. और reading में issue होने से comprehension में issue, interest, confidence, they all are related. तो रीडिंग होती है तभी तो कॉम्प्रिहेंशन होगा. आप रीडिंग नहीं करोगे, कॉम्प्रिहेंड क्या करोगे? सिर्फ लिसन करके तो नहीं कर सकते. कितने दिन आप लिसन करके कॉम्प्रिहेंड करोगे? रीडिंग इज मस्ट. सो आई थिंक लाइक टू कंक्लूड, रीडिंग एंड राइटिंग, अगर आपको स्पेलिंग्स अच्छी आती है, आपकी ग्रामर अच्छी, तो डेफिनेटली आपका टाइम कम लगेगा अगर आप ऊपर से कुछ देख कर उतार रहे हो. सो दिस इज़ अ रिलेशन लाइक जो आप पूछ रहे थे. तो कमिंग टू दैट, अगर वो नहीं है आपका परफेक्ट, तो थोड़ा सा आपका टाइम वहाँ पे ज़्यादा जाएगा. राइट, डेफिनेटली टाइम ज़्यादा जाएगा. So आपसे बहुत सारी चीज़ें पता चली, like tips and tricks of writing, and जो आप जितनी सारी चीज़ें कर रहे हो, and जो workshop आप पेरेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हो, it's definitely going to help them. Because कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से बच्चा कुछ सीख कर आता है, वो पेरेंट्स को बताता है, एंड वो पेरेंट्स कई बार उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं. करेक्ट. So that will be a very nice thing for us as a parent. Yeah. So it was and you would like to say something to our parents? I would say कि don't pressurize them. जो generally I have seen comparing peer pressure में कि उनका बच्चा लिख पा रहा है, मेरा क्यों नहीं लिख पा रहा है सेम क्लास में. प्लीज़ वो मत करो. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड दे विल डू इट. बट हाँ, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. सिर्फ आइदर ऑफ द पेरेंट्स शुड गिव टाइम टू द चाइल्ड. ये नहीं कि दोनों ही टाइम नहीं दे रहे हो एंड देन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू डू वंडर्स. तो वो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कर पाते हैं. तो योर कंसिस्टेंट सपोर्ट, डेली सिटिंग विद देम फॉर हाफ एन आवर, 1 hour, डेली रीडिंग आउट टू देम, मेकिंग देम राइट फॉर 15 minutes, and making them having some reading games, writing games, some fun activities. Online is like flooded. Like आप Twinkle Phonics एक है, आप जाएंगे writing के, आपको सारी चीज़ों के बहुत सारे prompts मिलेंगे. You can just download the worksheets, do it. There is a thing called online worksheets. हाँ, it is just called online worksheet, live worksheets. Sorry, online live worksheets.
सो वो लाइव वर्कशीट्स में आप जो सब्जेक्ट और क्लास डालोगे उसका वर्कशीट आ जाएगा विच अ चाइल्ड कैन सॉल्व लाइव एंड देन इमीडिएटली गेट द रिजल्ट. So you can engage them productively in a lot of things, but with your involvement and with a directional involvement, because that time the child has to be, has to has a clarity कि अभी मम्मा या पापा बैठे हैं तो we are going to work on something and definitely we are working for some results. So वो एक clarity के साथ आप बैठेंगे तो 100% the results would be there. Yeah. So thank you so much. Thank you so much. बहुत सारी नई नई चीज़ें डेफिनेटली पेरेंट्स को पता चली हैं आपसे आज. Yeah. It was nice talking to you. Thank you. Same to you. Yeah, and I wish you and your channel a lot of luck. Yeah, and a lot of members come to you and talk to you on different fields. We're looking forward. Yeah. Thank you, ma'am.